Dear student, welcome to the physics class. Today we will discuss about the Einstein's well-known formula E बराबर mc square. That means mass energy relation. In last lecture we have discussed about the variation of mass with the velocity. On the basis of that variation of mass, the velocity, we will drive the relations between mass and energy. It is known as mass energy radiation. So as we know that the according to classical mechanics, the energy is defined in term of work, and work is defined in term of force and displacement, and force is the rate of change of momentum, and force is the rate of change of momentum. That is, if F is equal to dp upon dt, where p is the momentum, and p, uh, then we can write p as a d upon dt mv. P is the momentum, and that means mass into velocity. Okay, so then we can write p is equal to mv. And according to theory of relativity, mass and the velocity as the variable, mass and the velocity of the variable, so we can differentiate this mv in the parts, that means first and second differentiation. Doing the first and second derivation, we get the force in term of F is equal to m dv upon dt plus v dm upon dt. This is equation second. And when a particle is displaced through a distance dx, suppose dx is the small distance, by applying of a force, then the increase in kinetic energy. Now we suppose that a particle is displaced through uh, a distance dx by applying a force, then the increase in kinetic energy of the particle will be dk. Dk is the small increased kinetic energy. Dk is equal to force into displacement, force into displacement, and force is the m dv upon dt plus v dm upon dt. So we put force in equation uh, in 3, then we get get dk is equal to m dv upon dt dot dx plus v dm upon dt dot dx. Okay, then dk, then this equation could would be dk is equal to m dv upon dt, dx upon dt is the v, dx upon dt is the, it will be v, then mv dv plus v square dm. You can write above equation in this form, and this is the your equation 4. Again, as we know that the variation of mass with velocity according to theory of relativity is given by the formula m is equal to m naught upon root 1 minus v square upon c square. M is equal to m naught upon root 1 minus v square upon c square. Now squaring the both side, we get m square equals to m naught square upon c square minus v square upon c square. We can write this as equation in the form m naught square c square upon c square minus v square, and this will be m square c square minus m square v square equals to m naught square c square. Here m naught square will be m naught square m c square. Now differentiating above equations, now differentiating our equation, we get here the mass and the velocity both are the variable. So differentiating this part in the part that is first and second, do
2m dmc square, this part, to mass will be differentiate it, then 2m dmc square minus, and differentiation of m square v square in the parts, first and second, mm, do 2m dm v square minus 2m v square 2m square v dv equals to 0. Why 0? Because m is the rest mass, is the constant, and c is the velocity of light is constant. So the m, the differentiation of m naught square and c square will be 0, because both are the constant. So we get the equation, and in this form, dm square equals to v square dm plus mv dv. This is equation number 5. Now from equation 4 and 5, now equation 4 is, dk is equal to mv dv plus v square dm, and equation 5 is dm c square equals to v square dm plus mvdv. This means uh, the right side of equation 4 and 5 are equals. So we can write dk equals to, c square dm, Okay, this is your equation number 6. This is equation number 6. Now consider a body at rest initially, and by applying a force it require a velocity v, and mass of the body increase from m naught to m. That is, when the getting the velocity of any object, the mass will be increases according to theory of relativity. So we consider that a body at rest initially, and by applying a force it will acquire a velocity v. Suppose v is the velocity, then mass is increased from m naught to m naught, then total kinetic energy acquired by the body is given by dk. We can integrate, so we can find the total kinetic energy. Then dk is equal to integration of m naught, that means initially mass, to the final mass, integration from m naught to m c square dm square. It will come k equals to c square m minus m naught, m minus m naught. This is your kinetic energy. Is this is the increase in kinetic energy due to increase in mass. This relation is increase in kinetic energy due to increase in mass. And so total energy is the kinetic energy plus potential energy. Suppose m naught c square is the rest energy, m naught is the rest mass, then m naught c square is the rest energy. So we can write E equal to, kinetic energy is c square m minus m naught plus m naught c square. This is the total energy. So after solving this, m naught c square and n naught c square will be cancelled out, then the total energy will be equals to mc square. E is equal to mc square. This is well known as Einstein mass energy relation. This is well known Einstein mass energy relations. So we drive, so we today drive the Einstein mass energy relations. So we drive today's Einstein mass energy relations. Now we again repeating this. Uh, this is mass energy relation, Einstein mass relation. इसको कैसे ड्राइव किया गया है, इसको ड्राइव किया गया है as we know the in class, as we know in classical mechanics, energy is defined in term of the वर्क. एनर्जी को हम वर्क के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, एंड वर्क हमारा क्या होता है,
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम भी होता है। देन हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी लिख सकते हैं, और पी को है हमारा मोमेंटम है, या दैट मीन्स क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग मोमेंटम हमारा होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो हम डी अपॉन डी टी एम वी लिख सकते हैं। एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग मास एंड वेलोसिटी दो बोथ आर द वेरिएबल। देन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाय पार्ट्स से, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। एंड अगर हम कोई हमारा पार्टिकल है उसमें कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो डी एक्स डिस्टेंस पे डिस्टेंस डिस्प्लेस होता है, डीएस डिस्टेंस डिस्प्लेस होता है। देन उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको किस टर्म में लिख सकते हैं, डी के इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही आपका वर्क होता है, वर्क डन। इसी के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं वर्क डन को, यानी कि डी के इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू डी एक्स। और हमारा एफ क्या आया था, एफ की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हैं। देन हमारा इक्वेशन नंबर 3 क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 हमारी हो जाएगी डी के इक्वल्स टू एम डी वी अपॉन डी टी डॉट डी एक्स प्लस वी डी एम अपॉन डी टी डॉट डी एक्स। ओके, नाउ डी एक्स अपॉन डी टी हमारा क्या हो सकता है, ये वी हो जाएगा। डी एक्स अपॉन डी टी को हम वी लिख सकते हैं। देन हमारा डी के जो है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डी के इक्वल्स टू एम वी डी एक्स। हमारा डी एक्स अपॉन डी टी वी हो गया, एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, बिकॉज ये भी एक वी पहले से ही है, और डी एक्स अपॉन डी टी हमारा वी हो जाएगा। देन ये हमारा वी स्क्वायर डी एम आ जाएगा। एंड एज वी नो द according to theory of relativity, mass is a variable quantity with the velocity। एंड और ये फॉर्मूला थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग क्या आया था, एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आया था। और इसको अगर हम स्क्वायर कर दें, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, क्या हो जाएगा, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम नॉट की जगह पे सी इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि डिफरेंशिएट करने है पे मास हमारा वेरिएबल है, और यहाँ पे मास और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल है, और यहाँ पे मास, यहाँ पे एम एम नॉट स्क्वायर होगा, यहाँ पे वैल्यू जो होगी एम नॉट स्क्वायर होगी। देन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, एम नॉट हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, एंड सी भी हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि सी की वेलोसिटी ऑफ लाइट वेरी नहीं करती है आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। देन हमारा जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, टू एम डी एम सी स्क्वायर माइनस टू एम डी एम वी स्क्वायर माइनस टू एम स्क्वायर वी डी वी इक्वल्स टू जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि एम नॉट एंड सी बोथ आर द कांस्टेंट, सो ये पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा। देन हमारे पास क्या आएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी एम सी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी। इक्वेशन नंबर 5 हो गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो हमें पे क्या मिलेगा, राइट साइड 4 का, इक्वेशन नंबर 4 का, एंड इक्वेशन नंबर 4 का राइट साइड, एंड इक्वेशन नंबर 5 का राइट साइड इक्वल है, यानी कि सेम चीज है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड वाले डी के इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 6 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब हमने कंसीडर किया है कि कोई एक बॉडी इनिशियली एट रेस्ट पे है, और उसमें एक हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और वो फोर्स इतना अप्लाई करते हैं कि उसकी वेलोसिटी वी हो जाती है, वी वेलोसिटी हो जाती है।
वी वेलोसिटी तक आ जाती है, और इस वी वेलोसिटी के कारण उसका जो मास है वो हमारा इनिशियल मास एम नॉट है, और से बढ़ के हमारा एम मास हो जाता है, मास एम हो जाता है। तो एम नॉट से एम मास आने में जो उसको वेलोसिटी लगती है वो वी वेलोसिटी है। और इनिशियली वो रेस्ट पे था, उसमें हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया, और उस फोर्स की इतना फोर्स अप्लाई किया कि उसकी वेलोसिटी वी हो गई। सो उसका मास भी वेरी कर जाएगा, यानी कि एम नॉट से एम कर जाएगा। सो द टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालें, काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कितना, उसके वेरिएबल मास एम नॉट से एम तक पहुंचने में कितनी रिक्वायर्ड होगी। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें इक्वेशन नंबर 6 को, तो हमें मिल जाएगा कितना, सॉरी इंटीग्रेशन कर दें अगर हम इसका, तो इंटीग्रेट करने कहाँ से, एम नॉट से एम तक हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी के इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम नॉट एम सी स्क्वायर डी एम हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एम नॉट एम सी स्क्वायर डी एम हो जाएगा। यानी कि ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल के इक्वल्स टू सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट। ये हमारी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो गई ड्यू टू द इंक्रीज इन मास। यानी कि एम नॉट से एम जब तक मास पहुंचता है उतने में कितने काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज हो जाती है, के इक्वल टू सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट तक हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब नाउ टोटल एनर्जी हमारी कितनी होती है, जैसे सबको पता है टोटल एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज द रेस्ट एनर्जी, एक प्रकार से हम कहते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है रेस्ट एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट इज द रेस्ट मास। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, के टोटल एनर्जी विल बी के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। और अब के की वैल्यू अगर हम इक्वेशन अब इक्वेशन से पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, ई इक्वल टू सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि एम नॉट सी स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो ये हमारा वेल नोन आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशंस को ड्राइव किया है। अब हम लोग इसके बेस में हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आपका लास्ट डेरिवेशन है। ठीक है, इसके बाद से आपका यूनिट खत्म है एक प्रकार से। ठीक है, अभी हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, न्यूमेरिकल करने के बाद हम लोग एक यूनिट टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम इस यूनिट को हाँ एंड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार से इस यूनिट का लास्ट डेरिवेशन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, और उसके सम न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। तो एक दो लेक्चर और मुश्किल से लगेंगे, उसके बाद ये यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी। ओके।